السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي انزل القرآن ونزل الفرقان وانعم علينا بالايمان وتمنا بالاحسان والصلاة والسلام على ما كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على سيدنا شفيع نبينا محمد وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج پورے ملک میں بھارت کے تمام میلہ کی سرزمین پہ حاضر ہے. حضور سرکار حکیم ملت کے اس سے چلم کے حسین موقع سے تمام محبان تمام مہمان اور یہ ہمارے جملہ علماء کرام اس لیے آئے تاکہ اپنی حاضری سے اس عرصے کی تقریب میں آپ تک ہم تک کچھ پیغامات دیتے ہیں. حضور سرکار فخر نفال حضور امین شریعت ادارہ شریعہ انڈیا اور حضور امین شریعت ادارہ شریعہ نیپال اور خاص طور پہ حضرت علامہ حبیب اللہ مصباحی صاحب قبلہ جو صبح سے ہی تمام مہمانوں کی خدمت میں اپنے تمام علماء اور طلباء اور خود بھی لگے ہوئے تھے. اتنے بڑے عالم اور اتنی سادگی شاید ہی میں نے کہیں دیکھی ہو. ایک اچھے عالم کی ہی پہچان ہے کہ ان کی کردار و عمل سے صرف اخلاق ہی اخلاق کے ساتھ ہو. یقیناً اسٹیج پہ اس وقت بہت سارے شعراء حضرات ایسے بھی ہیں جن کا نمبر اب تک نہیں آ پایا. بڑا ہی پڑھا لکھا لطیف اس جلسے کی قسمت بنے ہوئے ہیں. عوامی خطیب حضرت مولانا مشاہد رضا صاحب قبلہ چترویدی وہ بھی تشریف فرما ہے. کل ملا کر جتنے بھی علماء کرام بیٹھے ہیں سب کے تعلق سے مشترکہ طور پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کرام نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. وراثت کا مطلب یہاں یہ نہیں کہ جائیداد کے وارث ہیں، زمین کے وارث ہیں، پیسے کے وارث ہیں، بلکہ وراثت کا مطلب یہ ہے کہ علم و فضائل کے وارث ہیں. اگر ایک عالم کسی امیر ترین شخص کو دیکھتا ہے تو اپنی زندگی کو اس حساب سے موڑتا ہے. وہ جانتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان اپنی دولت و شہرت کے اعتبار سے زندگی گزارتا ہے. ایک ایم ایل اے کے پیچھے 3 گاڑی آگے 3 گاڑی، ایک ایم پی کے پیچھے 5 گاڑی آگے 10 گاڑی. یعنی ایک ایم ایل اے ایم پی صدر الصدور علاقے کا بہت بڑا انسان زمیندار ہو کچھ راستے سے گزرتا ہے تو ان کی الگ پہچان ہوتی ہے، ان کی الگ شناخت، ان کی حیثیت شہرت اور پیسے کے اعتبار سے ہوتی ہے. مگر جو مرتبہ، جو مقام، جو پریسٹیج، جو عزت، جو حیثیت اللہ نے ان علماء کرام کو بخشا ہے. اگر یہ ہمارے علماء کرام نبی کے ایک فرمان کو صرف روزانہ پڑھ ہے تو اپنے پاؤں کے نیچے ساری دنیا کی دولتوں کو رول دیں گے، یا یوں کہہ لیجیے کہ دنیا کی دولتوں پر پیشاب کر دیں گے، پھر بھی وہ خوشحالی کی زندگی گزارنا بہتر سمجھیں گے کہ نبی کی اس حدیث پاک کو پڑھ ہے. نبی فرماتے ہیں ان اہل السماوات والارض حقا نملۃ فی جوہرہا وحق الحوت فی الماء یصلون علی معلم الناس. ایک
exactly who lives on the heaven and who lives on the earth, as well as earth from the whole and fish from sea, all of them pray to Allah the Almighty for the pardoning the person who preaches the commandment, who teaches the commandment, who guides the commandment. نبی فرماتے ہیں کہ بے شک زمین و آسمان کی ساری چیزیں، یہاں تک کہ سمندر سے مچھلیاں، سوراخوں سے چوٹیاں، اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں جو ہمیشہ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ درسگاہ میں رہے تو نبی کی حدیث، تقریر کرنے آئے تو نبی کی بات، سڑک پہ چلتے ہوئے کسی کو غلط کرتے دیکھ لے تو ان کو سمجھانا، یعنی جو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قوم کی اصلاح میں گزارتے۔ سچ فرمایا میرے مصطفیٰ نے، تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، who reads Quran and teaches it is better than of you۔ جو تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اس کو بند کر دیجیے۔ شکر اللہ صلی علی سیدنا شفیع علینا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور سے سنیے گا یہ بات، مصطفیٰ فرماتے ہیں رضا رسول علم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں کہیں بیٹھ کر دینی باتیں سن لینا، سنا دینا رات بھر کی شب بیداری سے بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی دنیا کا کوئی بھی کام کرے اس سے بہتر کام نہیں ہو سکتا کہ جہاں آدمی بیٹھا ہو اور ہمارے علماء کرام ہم تک دینی باتیں پہنچاتے ہو۔ ہمارے علماء کرام ایسے ہی نہیں کہ گھر سے اٹھ کے آگے اور کچھ بھی بکنا شروع کر دیے۔ ایک مہینے کی محنت ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی تقریر ہے، ہزاروں کتابوں کو مطالعہ کرنے کے بعد 10 منٹ کی تقریر تیار کرتے ہیں۔ قوم کی ضرورت اور حالات کے اعتبار سے وہ باتیں رکھتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اپنی زندگی گزارنے کے وہ بہتر طریقے اپنے لیے نکال سکیں جس پر چل کر وہ خود دنیا میں اور مرنے کے بعد آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن مسلمانوں کے بچوں میں آج کہاں اس کے لیے ٹائم ہے کہ وہ جلسے میں جائے؟ جلسہ میں آنے کے بعد آدمی اپنی چچی کے گھر پہ، چچا کے گھر پہ، بھابھی سے ملنے، پھوپھی سے، نانی سے ملنے، یعنی جلسے میں بازار اور مارکیٹنگ کی صورت آج جلسہ نے اختیار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے گنے چنے لوگ، وہ بوڑھا آدمی جن کو زیادہ جلسہ سننے کی ضرورت بھی نہیں، وہ اللہ اللہ اپنی چرپائی بیٹھ کرے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ جس نوجوان کو جلسے کی ضرورت ہے، جس کو حدیث سننے کی ضرورت ہے، جس کو علماء کرام کی مجلس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، ویسے بچوں کو جلسے میں آنا چاہیے۔ آخر وقت تک جب تک سلام نہ ہو جائے، جب تک دعا نہ ہو جائے، ہر خطیب کے ایک جملے پہ غور کرے، کون سا خطیب کون سی بات کس انداز سے بتا رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس بات پر عمل کروں تو میری دنیا بدل جائے، میری آخرت تباہ ہونے سے بچ جائے۔ یعنی علماء کرام کی مجلس میں بیٹھنا، علماء کرام کے پاس بیٹھ کر ان سے دینی معلومات حاصل کرنا یقیناً ایک انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کرام کی بارگاہ میں جائے۔ علماء کرام کو اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے، نبیوں کی جماعت قوم کی اصلاح کے لیے آتی تھی، نبی انبیاء کرام آئے، اس کے بعد اولیاء کرام نے اصلاح کا کام شروع کیا، تو علماء کرام کے تعلق سے حضرت امام شافعی فرماتے کہ ایک عالم اگر اللہ کا ولی نہ ہو تو وہ زمین پہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ یعنی عالم کے لیے ولی ہونا ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے علماء کرام مسجد میں نماز پڑھانے کے چکر میں، مدرسے میں پڑھانے کے چکر میں اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے عالم کا روپ دھارن اختیار کرتے ہیں تاکہ لوگ ہم کو ولی نہ سمجھیں، اور آج اسی وجہ سے غلط لوگ ولایت کے چکر میں پڑ گئے۔ وہ آدمی بڑا بڑا بال رکھنے والا، 5 انگلی میں 5 انگوٹھی پہن کے گھومنے والا، میں نے کلکتہ کی سرزمین پہ ایک شنگلی پیر کو میں نے دیکھا، دستار بندی کے جلسے میں خطابت کے لیے مجھے دعوت دیا، میرے سامنے کئی عورتوں سے مصافحہ کیا، کئی لوگوں سے اس نے سودا کیا کروایا، اس کے بعد
ऐसे भी पीर देखे गए हैं जो लोगों से सजदा कराता है। अब जरूरत इस बात की है कि पढ़ा लिखा आदमी हो, एक पढ़ा लिखा आदमी जिसके पास इल्म होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, जिसके पास जानकारी होगी, अगर वो पीर हो जाए, वो अगर हम उनसे उनका दामन अगर हम थाम लें तो समझ लें कि हम यहाँ भी कामयाब हैं, मरने के बाद वहाँ तो कामयाबी हमारे लिए मुकद्दर है ही। मैं कहना चाहूँगा उलमा की महफिल में एक आदमी जब चाहता है 10,000 साल की इबादतों को बर्बाद होने से बचा लेता है। मानिए हमारे समाज में कोई ऐसा भी आदमी हो जो 50 साल से नमाज पढ़ता हो, 50 साल की नमाजों के तमाम तौर तरीके सही से अदा हुए, सारे एलिमेंट्स की अदा की उन्होंने सही से किया, मगर एक छोटा सा काम उससे नहीं हो सका कि वो हालत सजदा में अपने पाँव की 10 उंगलियों में से किसी भी पाँव की किसी भी उंगली के सिरे को जमीन के टच पे नहीं रखा, सारा काम नमाज में किया। तो कानून की जबान में अभी ने शरीयत फरमाएंगे तो उस 50 साल के नमाजी के तमाम सजदे बर्बाद कर दिए गए, क्योंकि हालत नमाज में अपने पाँव की 10 उंगलियों में से एटलीस्ट दोनों पाँव की कम से कम एक उंगली के सिरे को जमीन के टच पे रखना ये फर्ज है। कम से कम 3 उंगली दोनों पाँव की जमीन के टच पे रहे तो ये वाजिब है, और 10 उंगलियों के सिरा अगर हम जमीन के टच पे रखें ये सुन्नत है। कानून इस्लाम कानून शरअ ये है कि हालत नमाज में हम में से जो फर्ज छोड़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। अब आप इंसाफ के साथ बताइए, समाज का वो आदमी जो 50 साल से नमाज पढ़ रहा है, वो अपने 50 साल की नमाज बाद में स्टार्ट करता, 5 मिनट में मौलवी साहब के पास आकर, इमाम साहब के पास आकर, हजरत के पास आकर 5 मिनट में ये मसला सीख लेता, तो उस व्यक्ति की 50 साल की नमाज तबाह होने से बच जाती। आदमी मौलाना साहब के पास आएगा नहीं, मौलवी साहब के ताल्लुक से अगर कोई बोलते कि ये वली है, ये पीर साहब है, तो ये मानने को तैयार नहीं। वो बोलेंगे मैं कैसे से मान लूं कि ये पीर साहब है, इनकी करामत क्या है, इन्होंने कभी ट्रेन रोका है क्या, इन्होंने कभी उड़ के नमाज पढ़ा है क्या। यानी एक माइंड सेट हो चुका है, हम किसी मुगालते के शिकार हो चुके हैं। आज हमारा बच्चा कंफ्यूज है कि जो ट्रेन रोकता है वही पीर होता है, जो ट्रेन रोकते उड़ते हुए नमाज पढ़ ले, जो मगरिब की नमाज मदीना में, इशा की नमाज बगदाद में और फजर की नमाज अजमेर में, ये ऐसे नमाज पढ़ने की बात करे कि मैं घर पे नमाज थोड़ी पढ़ता हूं, मैं तो मगरिब की नमाज बगदाद पढ़ने चला गया था। ऐसा डायलॉग जो मारता है हमारा बच्चा उससे पीर समझता है, हमारा बच्चा उससे वली समझता है। मैं कहना चाहूंगा बिला शुबहा पीर को अल्लाह बिल कुवा ऐसी ताकत देता है, वो चलती ट्रेन को रोके, वो उड़ते हुए नमाज पढ़े, वो जुनैद बगदादी की तरह पानी पर मसल्ला बिछा कर नमाज पढ़े। लेकिन जब जिस पीर को, जिस वली को अल्लाह करामत की जो भी ताकत दिया, या जिस नबी को मुअजिज़े की जिस तरह की ताकत दिया, उस ज़माने के तकाज़े के एतबार से, हालात के डिमांड के एतबार से, वक्त की ज़रूरत के एतबार से, यानी जब ज़रूरत जिस बात की थी उस एतबार से अंबिया मुरसलीन या औलिया सालिहीन ने करामत दिखाकर, अंबिया मुरसलीन ने मुअजिज़ा दिखाकर लोगों के सामने हक का इस बात आपने फरमाया। बिला ज़रूरत, बिला किसी वजह के किसी वली ने, किसी नबी ने न कोई मुअजिज़ा दिखाया, न कोई वली ने कोई करामत दिखाई। जब जरूरत पड़ी तब जुनैद बगदादी ने मसल्ला बिछा के नमाज पढ़ी, जब जरूरत पड़ी तब जाकर करामत दिखाई गई हजरत गरीब नवाज के जरिए। पूरे अना सागर के पानी को एक छोटे से कटोरे में आपने जमा करवाया, पूरे कई घंटे तक ऊँटनी को एक जगह पर बैठने पर मजबूर किया। ये उस वक्त के हालात का तकाजा यही था कि कोई पीर उस जादूगरों के सामने ऐसा आए जो ऊँट को बैठने कहते तो घंटों ऊँट बैठा रह जाए, जो पानी को कहते कि कटोरे में आ जाओ तो पूरा पानी कटोरे में आ जाए, जो अपनी जूती को हुक्म दे दे तो वो क्या जादूगरों के सरों पे वो मारती लगती हुई जूती उसको नीचे करे। यानी जब हालात का तकाजा जो था, हालात का डिमांड था, हालात जो कह रहे थे, उसी एतबार से अल्लाह अपने वली को वो ताकत दिया ताकि लोग मान जाए कि अल्लाह का मुनफरिद बंदा है, ये पैगाम हक के लिए आया है, ये इंसानों की इस्लाह के लिए आया है, ये कौम की हिदायत के लिए आया है। मगर आज हमने मिजाज क्या बनाया, हम कैसे इस मौलवी साहब को पीर मान ले। इन्होंने कभी बगदाद में नमाज पढ़ा नहीं, नेपाल में रह के अजमेर में नमाज पढ़ने की बात की नहीं, इन्होंने चलती ट्रेन को रोका नहीं, इन्होंने जहाज को रोका नहीं। यानी करामत को आज हम समझते ही नहीं करामत किसे कहते हैं। वो खिर के आदत है, वो खिर के आदत काम को खिलाफ आदत और फितरत के खिलाफ काम ऐसा हो जाए जिसे आमतौर पर ना साइंटिफिक तरीके से उसे तस्लीम किया जाए, ना अक्ल तस्लीम कर पाए, उसे हम करामत कहते हैं। वही काम अगर
انبیاء کرام سے ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کرامت اور معجزہ میں معنوی اعتبار سے فرق نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے فرق ہے۔ انبیاء کر دے تو وہ معجزہ ہے، اولیاء کر دے تو وہ کرامت ہے۔ مگر ہم اس بات کو سمجھے تب نا، کرامت جب بھی کسی ولی نے دکھایا ہے، ضرورت اس بات کی رہی ہے اس تب دکھایا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک آپ اگر سب کی زندگی مطالعہ کریں گے، چاہے انبیاء مرسلین کی ہو یا اولیاء صالحین کی ہو، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی بڑک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کا سب سے زیادہ اہل ہوں، میں تسبیح و تحلیل میں اس سے زیادہ ہوں، میں اس سے زیادہ تیری حمد بیان کرتا ہوں، میں اس کا اہل ہوں۔ اللہ نے کیا کیا؟ ایک معجزے کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی تمام چیزوں کے اسما سکھا کر ایک بہت بڑے معجزے کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تحفہ عنایت فرمایا گیا۔ حضرت آدم اور فرشتوں کے بیچ میں جب ایک مناظرہ کی صورت میں جب پوچھا گیا کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، فرشتے چپ رہے، حضرت آدم تمام چیزوں کے اسما گنا دیے، خوبیاں گنا دی آپ نے۔ میں کہنا چاہوں گا اس وقت کے حالات کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی اللہ کا نبی وہ ہو، اللہ کا فضل اس پہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ وہ مقصود بندہ کہلاتا ہے جس کو اللہ الگ سے کوئی ایسی طاقت دیتا ہے جو سامنے والے کو مبہوت کر دے، سامنے والے کو بالکل حیرت میں پڑا دے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، اس کی کیفیت مجھے معلوم نہیں، یہ چیز یہاں تھی ابھی کیسے غائب ہو گئی، یہ آدمی پانی پہ کیسے چل رہا، یہ آدمی راستہ کیسے تیار کر دیا پانی میں عصا کے ذریعے، یہ آدمی پتھر کیسے توڑ دیا۔ یعنی جب کسی نبی کو اللہ نے معجزہ کی طاقت عطا فرمائی، اس وقت کا تقاضا وہی تھا، ڈیمانڈ وہی تھا، وہ حالات کی مانگ وہ تھی، اس اعتبار سے اللہ نے وہ طاقت دی اور انبیاء کرام نے کر دکھایا۔ اسی طرح تمام اولیاء کرام کو اللہ نے جب جو طاقت کرامت عطا فرمائی، اس وقت کے ڈیمانڈ کے اعتبار سے طاقت عطا فرمائی۔ میں بات کرنا چاہوں گا ہم سرکار حضور حکیم ملت کی، سرکار حکیم ملت بلا شبہ بہت ساری ایسی کرامت دکھائے ہے جسے ہماری عقل ماننے کو تیار نہیں ہوگی، کیونکہ کرامت کہتے ہی اسے ہے جسے عقل نہ مانے، جسے ہم تسلیم نہ کرے، جسے فطرت نہ مانے، جسے سائنٹسٹ تسلیم نہ کرے، اسے ہی کرامت کہا جاتا ہے، اسے ہی کرامت کہتے ہیں۔ بلا شبہ حضور حکیم ملت نے بہت ساری کرامتیں دکھائی، لیکن اگر آپ حضرت کی بڑی سے بڑی کرامت کو اگر سرسری طور پہ دیکھنا چاہیں گے تو وہ ساری کرامتوں کو برقرار کیجیے۔ حضور سرکار حکیم ملت جس سماج میں ہو، جس معاشرے میں آپ آئے، ایسا معاشرہ جبکہ 5 وقت نماز پڑھنا ایک انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہو گیا، جب جھوٹ بولنا انسانوں نے عام کر دیا ہو، جس زمانے میں حرام خوری، شراب نوشی، جس زمانے میں شریعت پہ عمل کرنا ایک آدمی کے لیے سب سے سخت ترین کام ہوتا ہو، اس ماحول میں ضرورت اس بات کی اب نہ رہی کہ کوئی پیر ایسا ہے جو پانی میں مسلح بچھا کر نماز پڑھ کے دکھا دے، ضرورت اس بات کی نہیں رہی کہ کوئی ولی ایسا آئے جو چلتی ٹرین کو روک دے، ضرورت اس بات کی اب نہ رہی کہ کوئی پیر ایسا آ جائے جو کلکتہ میں رہ کے اجمیر بولے کہ میں نماز پڑھنے گیا تھا، بلکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ولی ایسا آئے جو 5 وقت تو نماز پڑھ ہی پڑھے، 4 وقت کی بھی نماز کو پڑھے، عشاء کی نماز بھی پڑھے، تہجد کی وہ ادا کرے، جھوٹ سے بھی بچے، دوسروں کو جھوٹ اور حرام خوری سے بچنے کی تلقین کرے۔ جب یہ کوالٹی جس کے اندر پائی جائے گی، اگر وہ مرد مومن ہے تو وہی اس زمانے کا سب سے بڑا پیر اور سب سے بڑا ولی۔ یہی ایک ولی کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ ایک عالم ربانی کے بارے میں حدیث کریمہ میں اتنی ساری باتیں جو عظمتیں بیان کی گئی ہے وہ تمام عالموں کے لیے ہے، چھوٹا مولوی ہو، بڑا مولوی ہو، مولوی صاحب کے بھی مراتب ہوتے ہیں، بڑا مولوی، چھوٹا مولوی اور متوسط مولوی، اسی طرح تمام مولویوں کے بارے میں سرکار دو عالم کے تمام فرامین ہیں، سب کی شان میں وہ حدیث بات ہے۔ لیکن جو بڑا مولوی ہو، وہ مولوی جن کا چہرہ دیکھے تو اللہ یاد آ جائے، جن کے پاس 10 منٹ بیٹھا جائے تو نبی یاد آ جائے، جن کے پاس 5 منٹ بیٹھے تو سنت رسول پر عمل کرنے کا دل میں شوق پیدا ہو جائے، وہ عالم ربانی جن کی زندگی کا ایک ایک حصہ مذہب و ملت کی اصلاح کے لیے گزر گیا ہو، جن کی زندگی قربان ہو گئی ہو قوم کی اصلاح کے لیے، وہ عالم ربانی جو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قوم کی اصلاح میں گزار دیے ہو، وہ عالم ربانی جو سنت مصطفی پر خود عمل کر کے دوسروں کو عمل کی دعوت دی ہو۔ آپ سمجھ سکتے کہ جب عام مولوی کے فضائل اتنے زیادہ ہے تو وہ مولوی جو تہجد کی نماز پڑھتے ہو، جو عشاء کی نماز پڑھتے ہو، جو اپنی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ تحریر و تقریر کے ذریعے صرف مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت میں قربان کر دیا ہو، اس مولوی صاحب یا اس عالم ربانی کے فضائل کتنے بڑے ہوں گے، کتنے بلند ہوں گے۔ وہی
मौलवी साहब वही आलिम रब्बानी अगर कोसी शरीफ में पैदा हो तो दुनिया उसे सदरुल शरिया कहती है। वही आलिम रब्बानी अगर बरेली शरीफ में आ जाए तो दुनिया उसे ताजुल शरिया कहती है। वही अगर धामनगर शरीफ में आ जाए तो लोग उसे मुजाहिद मिल्लत के नाम से याद करते हैं। वही अगर वो मुबारकपुर आजमगढ़ में आ जाए तो दुनिया उसे हाफिज मिल्लत के नाम से याद करती है। और वही अगर बेला नेपाल में आ जाए तो दुनिया उसे हकीम मिल्लत कहती है। हम उसे हकीम मिल्लत के नाम से याद करते हैं। यानी एक आलिम की क्वालिटी यही है, उनके अंदर विलायत मौजूद रहती है। लेकिन आज आदमी मानने को तैयार नहीं। मौलवी साहब को मौलवी मानता नहीं तो मौलवी साहब को पीर कैसे मारेगा? मौलवी साहब को अपना गुलाम इस जमाने में आदमी समझता है। 5,000 रुपये तनख्वाह देने वाला, 10,000 में अपनी गुलामी कराने वाला, वो अपनी बेटी की शादी में इस्तेमाल करने वाला, बेटे के निकाह में इस्तेमाल करने वाला, वो आदमी मौलवी साहब के दिलो दिमाग को बिल्कुल कैप्चर किया हुआ रहता है। उसके एहसास करता है कि मौलवी साहब को मैं बोलूंगा कि फजर की आजान आज कितने बजे होनी चाहिए तो मौलवी साहब 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड बाद नहीं देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं उसको तनख्वाह देता हूं, वो मेरा गुलाम है। जिस जमाने में हमने मौलवियों को अपना गुलाम समझा, जिस जमाने में हमने मौलवियों को अपनी तनख्वाह में हमने एहसास ये किया कि हम तनख्वाह बंद कर देंगे, मौलवी साहब भूखे मर जाएंगे, उनकी बीवी मरने लगेगी, उनके बच्चे गिलगिलाने लगेंगे, उस माहौल उस मुआशरे में कौन किसी आलिम को पीर मानेगा? इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम आलिम रब्बानी की कदर करें। आलिम रब्बानी हमारे लिए, इनका वजूद ही हमारे लिए बायसे करो बरकत है। ये आज दुनिया में है तो आज इस्लाही बातें हम तक पहुंचाते हैं। ये चले गए तो कौन अल्लाह से खौफ दिलाने की बात करेंगे? कौन कहेगा कि अल्लाह से डरना चाहिए? कौन कहेगा कि ये रास्ता सही है? कौन कहेगा कि इस रास्ता पे नहीं चलना चाहिए? कौन बताएंगे कि अल्लाह से नहीं डरोगे तो तुम भी दूसरी कौम के तरफ बर्बाद हो जाओगे? कौन बताएगा हमें कि जन्नत का ये रास्ता है, दोज़ख का ये रास्ता है, ये शे हराम है? यही वजह है कि आज नौजवानों ने उलमाए किराम से दूरी अख्तियार की, खानकाहों में आना जाना छोड़ा है, पीराने इज़ाम से मुलाकात करना छोड़ा है, जिसकी वजह से आज उनकी जिंदगी मुख्तलिफ हो गई। वो अपनी कमाई में मस्त हो गया, अपनी शोहरत में, अपनी दौलत को हासिल करने के चक्कर में आज हमारा बच्चा रात दिन मेहनत करता है। वो ये सोचता कि कौन अल्लाह, कैसा अल्लाह, मैं नहीं मानता, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं इस्लाम नहीं जानता, मैं तो 500 रुपया पर डे कमाने का हुनर सीखना चाहता, मैं तो एक बड़ा मकान बनाना चाहता, मेरे पास 4 चक्का दरवाजे पे आ जाए, मैं इसकी कोशिश करता। अब इसी नशे की तकमील में आज समाज का हर फर्द लगा हुआ है। पैसा कहां से आ जाए, माल कहां से आ जाए, दौलत कहां से आ जाए, मकान कैसे बड़ा बन जाए, कैसे उसकी बिल्डिंग मोटी और लंबी चौड़ी हो जाए, इसी ख्वाहिशात की तकमील में आज हर इंसान लगा हुआ है। आज से 20-25 साल पहले अमेरिका ने भी ऐसा किया, फ्रांस ने भी किया, इटली ने भी कर दिखाया, चाइना जो हमारे मुल्क के बिल्कुल करीब में है, चाइना में आज से 20 साल पहले एक माहौल साजी की गई कि दुनिया में कोई अल्लाह नहीं, देयर इज नो एनी गॉड इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई अल्लाह नहीं हो सकता। कि दुनिया में जितनी सारी चीजों की तकलीफ हुई, चाहे चांद की तकलीफ हो, जमीन की तकलीफ हो, आसमान की तकलीफ हो, सितारे की तकलीफ हो, ये सारी चीजों की तकलीफ, सारे तकलीफात ये ऐसे ही हो गए, इसके पीछे अल्लाह का ऐसा नहीं, यानी वो माहौल साजी की गई। लिहाजा तहकीक के जरिए उन्होंने चांद पर पहुंचना चाहा, तहकीकी माहौल को फरोग दिया, तहकीक का नशा ऐसा चाइनीज साइंटिस्ट के दिलो दिमाग में चढ़ गया, वो रात दिन तहकीक के नशे में सोने उठने बैठने लगा। हमेशा सोच करना, तहकीक करना, रिसर्च करना उनकी जिंदगी का मैनिफेस्टो बन चुका था। अब वो चाइना के माहौल और सोसाइटी में जब तहकीकी सरगर्मियां आ गई, उसने अल्लाह को भूलना शुरू किया, नमाजों पे पाबंदी लगाई, मस्जिद में ताले लगाए, अल्लाह के नाम के प्रचार प्रसार पर पाबंदी बैठाई। उनको तहकीक में जब जैसे ही कामयाबी मिलने लगी, जैसे ही उसका ऑर्बिटर चांद पे चला गया, जैसे ही वो नकली चांद बनाने में कामयाबी पाई, जैसे ही वो एक इंसान के गुर्दे को दूसरे इंसान के गुर्दे की जगह सेट करना सीख लिया, यानी मेडिकल क्षेत्र में, यानी साइंटिफिक मैदान में जब उसको खातिर कामयाबी नजर आई, फौरन वो एक ऐसा माहौल बनाया कि हमारे चाइना में कोई अल्लाह का नाम नहीं ले सकता, कोई मजहब का प्रचार नहीं कर सकता, कोई खुले में आजान नहीं दे सकता, कोई नमाज कायम नहीं कर सकता, कोई कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकता। अल्लाह को भूल कर तरक्की करना, अल्लाह को भूल कर तरक्की की राह हमवार करना, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह से बेनियाज होकर एक आदमी अपनी शोहरत को हासिल करने के चक्कर में पड़ा रहना, इसका नतीजा क्या होता है अभी आप मेरे अगले जुमले में समाप्त करेंगे। चाइना ने एक माहौल बनाया, जगह जगह ऐलान डाला, देयर इज नो एनी गॉड इन द अर्थ, दुनिया में कोई अल्लाह नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई क्रिएटर नहीं। और उसने ऐलान ये किया, क्या किया
none of the citizens from Chinese can deliver the speech, a religious speech. चाइना में रहने वाला कोई भी मजहबी भाषण नहीं दे सकता. None of the citizens from Chinese can recite the Holy Quran openly. चाइना में रहने वाला कोई शहरी खुले में कुरान नहीं पढ़ सकता. चाइना में रहने वाला कोई शहरी खुले में नमाज नहीं पढ़ सकता. यानी तहकीक और तफ्तीश के नशे में ध्वस्त होने वाला चाइना, यही बस असर अमेरिका चला गया, यही असर इटली तक पहुंच गया, यही हालात जर्मन के हो गए. अलगरज दुनिया की हर सोसाइटी में तहकीक और तजस्सुस, शोध और अध्ययन का ऐसा नशा चढ़ गया. अल्लाह को छोड़कर उसने जमीन पे तहकीक की, आसमान पे तहकीक की, चांद पे तहकीक की, हर जगह पे रिसर्च किया, लेकिन जमीन के खालिक की जात को जानने की कभी कोशिश नहीं किया. ये नहीं जान पाया कि जमीन को पैदा किसने किया, ये समझने की कोशिश नहीं की कि आसमान किसने बनाया, ये समझने की कोशिश नहीं की कि जिस चांद पर हम अपना ऑर्बिटर भेज रहे हैं उस चांद में रोशनी और तवानाई किसने बख्शी है, जिस सूरज की तवानाई को हासिल करके हम दुनिया को एनर्जेटिक बना रहे हैं, इस सूरज को रोशनी कौन दे रहा है. लिहाजा सिर्फ एक ही पहलू से वो तमाम साइंटिस्ट गौर व फिक्र करते रहे. नतीजा क्या निकला, उनके घरों में बड़ी से बड़ी कामयाबी उनको मिलने लगी. उनके पास गाड़ी आ गई, कंप्यूटर आ गए, जहाज बन गए, 10-10 घंटे का सफर 1-1 घंटे पे करने पर वो काबिल हो गया. अब कोई ये सोचा कि वाकई कोई अल्लाह नहीं, उसे क्या मालूम कि अल्लाह का फैसला अटल है. अल्लाह का कुरान फरमाता है लो युआखिजुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला सारिया मिन दाब्बा वलाकिन युआखिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा फइज़ा जा अजलुहुम फइन्नल्लाह तआला बिइबादिही बसीर. यानी अल्लाह का फैसला अटल है. अल्लाह अगर हमारे करतूतों की इताअत के बदले हमें सजा देना चाहे, वो जमीन पे चलने वाला, जमीन पे रहने वाला कोई अल्लाह की गिरफ्त से भाग नहीं पाएगा. मगर अल्लाह हमारे गलत कैरेक्टर के बदला कब देता है, एक फिक्स टाइम के लिए अल्लाह इसे मुलतवी फरमाता है कि जब वक्त आएगा बंदा तब तुझे बताया जाएगा, जब समय आएगा तेरा बुरा तब तुझे दिखाया जाएगा. आज तुम अपने साइंसी नशे में चूर हो, आज तुम कहते हो कि हमारे आगे कोई नहीं, आज तेरा गुमान है कि दुनिया में कोई अल्लाह, दुनिया का कोई खालिक, दुनिया बनाने वाला कोई नहीं. अब क्या माजरा था, वो चाइना जो 10 साल से अपने पूरे मुआशरे में नमाजों पे पाबंदी, कुरान की तिलावत पे पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी, इस्लामिक सिविलाइजेशन पे पाबंदी, इस्लामिक माहौल के क्रिएशन पे पाबंदी, कुरान की तिलावत पे पाबंदी, इस्लामिक कानून, इस्लामिक संविधान पे अमल करने पे पाबंदी बैठाई थी. उसी चाइना की धरती से अल्लाह ने ऐसी बीमारी को जन्म दिया जिसका तोड़ आज भी उसके पास मौजूद नहीं. आज तकरीबन 10 महीने हो गए, चाइना की कमर टूट गई, अमेरिका तबाह बर्बाद हो गया, इटली परेशान हो गया, फ्रांस में जगह कम पड़ गई कब्रिस्तान में मूर्ति को दफनाने के लिए. ऐसी महामारी आई कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पूरी दुनिया को महामारी घोषित करनी पड़ी. सारी दुनिया में हाहाकार मच गया. क्या अमीर क्या गरीब सबको परेशानी नसीब हो गई. सब लोग बोलने लगे आखिर क्या मामला है. वो साइंटिस्ट कहाँ चले गए, वो मेडिकलिस्ट कहाँ चले गए, वो डॉक्टर्स कहाँ चले गए जिन्होंने वेंटिलेटर का दावा किया था, जिन्होंने आई ट्रांसप्लांटेशन का दावा किया था, जिन्होंने किडनी फेल होने वाले का इलाज करने की कामयाबी का दावा किया था, जिन्होंने शुगर, हार्ट और प्रेशर जैसी खतरनाक और मौलिक बीमारी से निपटने का दावा किया था. कहाँ चले गए वो डॉक्टर्स. क्यों नहीं इसका इलाज उनके पास, क्यों नहीं इसकी तोड़ उसके पास, क्यों नहीं इसकी जोड़ उसके पास है. अब मैं कहना ये चाहूंगा असल में ये बीमारी होगी तब नहीं इसका इलाज में खोज पाएंगे. जो भी चीज बीमारी होती है अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह पहले दवा का इंतजाम फरमाता है, फिर बीमारी आती है, फिर वो उम्मत आता है. यानी वो बीमारी नहीं बल्कि बीमारी की शक्ल में अज़ाब इलाही का वजूद हुआ है, जिसकी वजह से क्या अमीर क्या गरीब, क्या अमेरिका क्या अफ्रीका, क्या मलेशिया क्या इंडोनेशिया, चाहे वो चाइना हो या जापान हो, मलेशिया हो इंडोनेशिया हो, फ्रांस और इटली जैसी मेडिकल क्षेत्र में माहिरीन सोसाइटी भी इनकी कमर टूट गई. वहां भी इसकी कोई तोड़ छोड़, इसका कोई इलाज उनके पास नहीं. बड़े बड़े मुआलिज थक गए, बड़े बड़े हकीम थक गए, आदमी का मरना कम नहीं हो रहा है. हमारे आपके पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में 80 लाख के करीब लोग इसके पेशेंट पाए गए. उन्होंने दावा किया था कि हम जीत जाएंगे, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा, नेपाल जीतेगा. दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट ने दावा किया था. कहाँ उसकी तहकीक चली गई. आखिर इसका इलाज क्यों नहीं है. इसका इलाज इसलिए नहीं है, अल्लाह का कलाम फरमा रहा है. ये सारी चीजें हमारे करतूतों का नतीजा है. वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम व्हाट misfortune befalls on you, it is because your hand has gathered it, it is because you have done it, it is because your character has done it. यानी ये जितनी तबाहियां आज हम देख रहे हैं, आज जो साइंटिस्ट का बच्चा मर रहा है, आज उसी
के कई मिनिस्टर चले गए, कई नंबर पे लगे हुए हैं, कई आने वाले महीनों में नंबर पे आएंगे, यानी ये तमाम नंबरात लगे हुए हैं। ये सिर्फ हमारे हमारी बदकिरदारी का नतीजा है। हमने उलमा किराम से दूरी अख्तियार किया, हमने नमाज जुमा के दिन भी मस्जिद में उस वक्त जाने का इरादा किया जब अरबी खुतबा भी खत्म हो जाए, यानी जब नमाज खड़ी होने का वक्त हो, जब हम चाहते ताकि मौलाना साहब की तकरीर सुनने का मौका न मिले। पीर साहब खानकाह में पड़े रहे, कोई पूछने वाला उन्हें नहीं, कोई जाने वाला उन्हें नहीं, कोई रूहानी ग़िज़ा उनसे हासिल करने वाला नहीं। सिर्फ पीर साहब के ताल्लुक से ये जानना कि पीर साहब के पास 4 व्हीलर कहां से आ गई, पीर साहब के पास मकान इतना बड़ा कैसे हो गया, पीर साहब का बेटा अमेरिका में कैसे पढ़ता, पीर साहब का बेटा इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। यानी हमारा माइंड सेट हो चुका है कि पीर वही होगा जिसके पास फॉर्चूनेट कार न हो, पीर वही होगा जो टूटी साइकिल में चलेगा, पीर वही होगा जो घास फूस खाएगा, पीर वही होगा जो दुनिया को त्याग देगा दीन के लिए। मैं कहना चाहूंगा बिला शुबहा एक पीर की आदत हसना ये भी है जो दुनिया को त्याग दे, दुनिया से बेनियाज होकर सिर्फ अल्लाह की जात से अपना कनेक्शन जोड़े। बिला शुबहा ये पीर की खूबियों में से है। लेकिन ये उतने बड़े पीर नहीं, सबसे बड़े पीर तो वो पीर होते हैं जो दुनिया में रह के दुनिया से बेनियाज रहे, बच्चों के साथ रह के बच्चों से बेनियाज रहे, बच्चों को पाल कर बच्चों से बेनियाज रहे, दुनिया में रह के अल्लाह से कनेक्शन जिनका लगा रहे, दुनिया में रह के हरामखोरी से बचा रहे, दुनिया में रह के हलाल के प्रभुत्व पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। आज अगर हम बात करें सरकार हकीम मिल्लत की करामत की, सरकार हकीम मिल्लत की तमाम करामात एक तरफ, एक सबसे बड़ी करामत का नाम तो यह है कि आप अपनी वफात से पहले पहले कौम की इस्लाह के लिए आपने 2 बड़ी करामत अपनी औलाद की सूरत में ऐसी छोड़ दी, जब तक उनकी औलाद रहेगी आपका नाम याद रहेगा। अल्लामा मुफ्ती इजहारुल नबी साहब जिल्ला की सूरत में आलिम नजीर बनाना बन जाए, ये कोई छोटी मोटी करामत नहीं है। जिस जमाने में आदमी आलिम से नफरत करता हो, उस जमाने में अपने 2 बेटे को बड़े आलिम की श्रेणी में डालकर एक बड़ी जिम्मेदारियों से हमगमार करना एक उसी इंसान का काम हो सकता है जो बड़ी सिफत हो, जिनको ख्याल हो कि कौम की इस्लाह के लिए फिर क्या होगा, हम चले जाएंगे दुनिया से, कौन दूसरों को बताएगा, कौन वो मेरा लड़का कहेगा ये चीज हराम है, ये चीज हलाल है। जो हमारे मुरीदीन, जो हमारे चाहने वाले, जो हमारे जो हमेशा आकर मसाइल हमसे सीखते थे, मेरी वफात के बाद उनको मसाइल कौन बताएंगे। इससे पहले उन्होंने इंतजाम फरमाकर ऐसा बेहतरीन आलिम दिया कौन के हवाले, अल जामिअतुल अशरिया जैसी यूनिवर्सिटी जो अज़हर हिंद जिसे कहा जाता है, जहाँ पढ़ाना ही हमारे लिए काबिल फख्र बात हो, जहाँ जाकर एडमिशन कराना हर तालिब इल्म की पहली ख्वाहिश होती है, पहली ख्वाहिश होती है कि मैं अशरिया जाऊँ, टेस्ट एग्जाम में पास करूँ, और पास करना ही बड़ी बात नहीं बल्कि वहाँ बने रहना, शशमाही में पास होना, सराना में पास होना, वहाँ के उसूल ज़वाबित पर अमल करना, मल्टी मीडिया मोबाइल को इख्तियार देना, असातिज़ा की बात मानना, तमाम खिलाफ़े शरअ उमूर से परहेज करके बिल्कुल अच्छे माहौल में रहकर तालीम हासिल करते रहना, तब जाकर उसको फजीलत की रस्ता उसके सर पर बांधी जाती है, तब मिसबाहियत का फेंटा और पगड़ी उनके सर पर बांधा जाता है। यानी मिसबाही बन जाना ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और जो मिसबाहियों को तालीम देता हो, जो मिसबाहियों को मिसबाही बनाने का काम करता हो, जो अज़हर हिंद जैसी यूनिवर्सिटी में तालीम देता हो, आप समझ सकते हो कितना बड़ा काम है। ये सिर्फ बेला और ये क्या बोलते हैं इस जिले की बात नहीं, बल्कि पूरे नेपाल वालों के लिए ये फख्र की बात है कि आपका बच्चा, आपका परवाता, आपके समाज में पैदा होने वाला, जिन्हें आपने गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा होगा, जिन्हें आपने चलते देखा होगा, जिन्हें आपने बोलते नंगे चलते देखा होगा, जिन्हें आपने बोलाना सिखाया होगा, जिनके साथ आपने कभी क्रिकेट भी खेला होगा, हो सकता हो वो आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में वहाँ के बच्चों को मिसबाही बनाने का काम कर रहे हैं। तो मिसबाही बनने के बाद जो पूरी दुनिया में आला हजरत के नाम का डंका बजा रहे हैं, आला हजरत की तर्जुमानी करते हुए नजर आते हैं। मैं कहना चाहूंगा यही सरकार हुजूर हकीम मिल्लत की एक बड़ी और मुमताज करामतों में से एक करामत है। उन्होंने अपने 2 बेटों में एक को अशरिया भेजकर और दूसरे को आलमी तहरीकी तबलीग में भेजकर दावती काम की जिम्मेदारी देकर एक बहुत बड़ा काम कौम के लिए किया। इसलिए मैं आपसे अपने मुख्तसर तरीन टाइम में ये गुजारिश करना चाहूंगा, हम उस वक्त कामयाब माने जाएंगे सिर्फ एक मुरीद बन जाना, किसी का दामन पकड़ लेना कामयाबी की जामिन नहीं है ये बात, बल्कि उस पीर साहब से हमेशा लगाव रखना, उनके मज़ार पे आना, उनकी कब्र पे आना, खानका पे आना, उनकी जगह पर जिसको रखा गया हो, जो कायम मकाम पीर साहब को हो, उनसे वाबस्ता करना और उनसे लगाव रखे रहना, तब हमारी कामयाबी के लिए
ये सर्टिफिकेट हमें मिलती रहेंगी। हम उम्मीद यही करेंगे सरकार हुजूर हकीम मिल्लत ने जिस तरह से भी तलीमी एतबार से, तहरीकी एतबार से, तकरीरी एतबार से जो पैगामात नशर फरमाए, चाहे वो नेपाल से होकर बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए कलकत्ता की सरजमीन तक हो, उनके तमाम पैगामात पर अमल करें। और एक करामत आपकी ये भी है कि लगभग 38 साल तक 38 ईयर्स 38 साल तक एक मौलवी साहब एक ही मसले पर 5 वक्त नमाज पढ़ा दे, इस जमाने में तो उससे बड़ा कोई वली हो ही नहीं सकता है। ऐसा खतरनाक माहौल मुंबई का, बेंगलोर का, खुद का कटा का मैंने देखा है। इशा की नमाज पढ़ाता है जो मौलवी, वो डरता रहता है कहीं 12 बजे रात में फोन सिक्योरिटी साथ में आ जाए, गोली अभी तक समझिए और सुबह से दूसरे इमाम का इंतजाम मैंने कर लिया हो। ऐसी संवेदनशील धरती पर 38 साल तक रहकर नमाज पढ़ाते रहना एक ही जगह पर, इसका मतलब साफ है उनके अंदर कितनी क्वालिटीज होंगी, उनके अंदर कितनी अच्छे कितने खूबियां ऐसे होंगे जिससे वो लोग मुतासिर होंगे। इसलिए 38 साल नहीं बल्कि कई 38 साल अगर हुजूर बाहयात होते तो कलकत्ता वाले अपने दिलो दिमाग पर हुजूर को बसा के रखते हैं। मेरा अकीदा कह रहा है ये अब मैं गुजारिश करूंगा आपसे ये मुख्तसर तरीन टाइम में कि हम और आप सब कामयाब रहेंगे जब उलमा किराम से हम जुड़े रहें। उलमा किराम से हमारा लगाव है। सरकार फख्र मिल्लत ने, सरकार फख्र नेपाल के काम ने आज बताया है कि आज सिर्फ ये नेपाल नहीं बल्कि इनके शागिर्द आज हिंदुस्तान में भी धूम मचा रहे हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर इनके शागिर्द, इनके पढ़ाए हुए आला हजरत के काम, आला हजरत के पैगामात काम कर रहे हैं। यकीनन नेपाल की धरती पर खासतौर पर इस खित्ते में बड़े से बड़े उलमा पैदा हुए हैं। हमारी जरूरत इस बात की है कि हम तमाम उलमा किराम की इज्जत करें, उनसे उनकी बारगाह में जाए, उनसे जुड़े रहें, उनसे अच्छे बुरे सवालात जाने, पहचाने, अच्छे बुरे रास्ते का इल्म हासिल करें ताकि हम ये फर्क कर सकें कि कौन सा रास्ता हमको तबाह करेगा, कौन सा रास्ता हमको बर्बाद करेगा। इसलिए वक्त ऐसा नहीं कि कौन कहाँ क्या बोल रहा है, हिंदुस्तान का सालिम क्या कह रहा है, अमेरिका का सालिम क्या कह रहा है, ये सारी लायानी बातें हैं। किसी की बातों पे कान धरने की कोई जरूरत नहीं। मुसलमान अगर है तो खानका से मस्जिद तक, मस्जिद से मदरसा तक, मदरसे से घर तक, घर से एक फर्द तक एक ही मजाज हो कि हम जिएंगे तो इस्लामिक माहौल में जिएंगे, हम मरेंगे तो पक्का मुसलमान होकर मरेंगे। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, हमें तो करनी है बस शहंशाह फतह की रज़ा जोई, वो हो अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी। और इसी तरह जिंदगी में इनकलाब लाने का एक बेहतरीन फार्मूला सरकार आला हज़रत ने दिया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से कोई काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अस्सलामु अलैकुम।